Hello students, in today's topic we are going to cover the remaining part of chapter number 1, Fundamentals of Accounting. Today we are going to discuss about the limitations of accounting, that what are the inherent problems that comes when we talk about accounting. Though accounting is an important aspect of business and it is very necessary to find out the profit and loss, but there are certain limitations which uh, curb its proper intention to give the true and fair view. The very first thing is personal biasness. Personal biasness means that at certain places the accounting information gets manipulated or gets distorted due to some personal judgment of the accountant. As we can read, accounting information also include estimation at certain places, which depends upon personal judgment of the accountant and may vary from one person to another. जैसे कुछ जगह एस्टिमेट्स लेने होते हैं या फिर दे आर सर्टेन मेथड्स लाइक एक काम करने के अगर 3 मेथड्स हैं, an accountant may choose one method number 1, the some another accountant may choose method number 2, whereas the third one may choose method number 3. So the answer of all the 3 accountant will be different, but still it will be correct. So there will be differences because of certain judgment. So in some cases, some events are measured on the basis of some estimates. In such cases, judgment of the person who is estimating the event plays a vital role in accounting. लाइक एग्जाम्पल दिया गया है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हमें यूजफुल लाइफ निकालनी होती है या एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू देखनी होती है कि कितने ईयर्स तक ये एसेट वर्क करेगी या कितना इसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी एट द एंड. तो यहाँ पे जजमेंट किसका वर्क कर रहा है? यहाँ जजमेंट वर्क करेगा अकाउंटेंट का. अकाउंटेंट चाहे तो उसकी ज़्यादा वैल्यू शो कर सकता है स्क्रैप, अकाउंटेंट चाहे तो उसकी लाइफ 8 ईयर्स ले सकता है, चाहे तो उसकी लाइफ 10 ईयर्स ले सकता है. तो दिस वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो पर्सनल बायसनेस always remains when we talk about accounts. The next is the omission of qualitative information. Qualitative information is that information which is not expressed in terms of money. So if you remember, while talking about the process of accounting, we make it clear that only those transactions will be recorded which can be expressed in terms of money. If there is some information which is very important but it cannot be expressed in terms of money, दैट विल बी एक्सक्लूडेड. तो इस वजह से क्या होता है, कई बार कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन केवल इसलिए ओमिट या केवल इसीलिए इग्नोर करी जाती हैं या अकाउंट्स में नहीं लिखी जाती हैं बिकॉज उनका मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं दिखा सकते हैं. अकाउंट्स कंटेन ओनली दैट इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इवन बिंग ऑफ मटीरियल नेचर. मैनेजमेंट चेंज हो, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज हो, whatsoever the cases, until and unless that can be expressed in numerical terms or in monetary terms with a reasonable accuracy, those will not be recorded in books of accounts. The next statement is window dressing. The next limitation, window dressing, that means manipulation of accounts in such a way that the financial statement may disclose a more favorable position than the actual position. इस तरीके से अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना कि वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन दिखाएं रादर देन द एक्चुअल सिचुएशन. कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट कंसील कर दिया, कोई ऐसा फैक्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा था उसको आपने हाइड कर दिया, ठीक है. तो ऐसे जब वाइटल फैक्ट्स को कंसील किया जाता है दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग. उसकी वजह से जो पोजिशन है वो एक्चुअल पोजिशन से ज़्यादा बेटर शो होती है. द नेक्स्ट इज बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन. While maintaining accounts, accountant को follow करने होते हैं certain principles and conventions. It results in exclusion of various information from books of accounts. जो हम आगे भी chapters में पढ़ेंगे, various principles and postulates are there which we have to follow, जिसकी वजह से कई बार काफ़ी सारी information जो है वो exclude करनी पड़ जाती है. Another important limitation is that it ignores the effect of price level change. Price level change का मतलब कि अगर किसी चीज़ के प्राइजेस चेंज हुए, एक प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे कॉस्ट विच स्टेट्स कि आपने अगर कोई चीज़ परचेज करी है यू हैव टू रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट ओनली, हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने पे आपने परचेज किया है. सो इट मे बी पॉसिबल मार्केट वैल्यू बढ़े कम हो, तो मार्केट वैल्यू को यानी इन्फ्लेशन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सपोज आपने अगर एक बिल्डिंग खरीदी है फॉर 5 लाख रुपीज़ एंड आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज कर गई तो उस चेंजेस को आप शो नहीं कर पाएंगे. तो प्राइस के चेंजेस को शो हम नहीं कर पाते हैं अकाउंट्स में. एंड द लास्ट इज इट इज अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग.
That means it is not good for finding out या to decide something in advance. Accounts केवल आपको past events की information देते हैं. Continuous changes take place in the demand of product, policies adopted by firm, position of competition, etc. बहुत कुछ चेंज होता है इकोनॉमी में, हम उन चेंजेस को इग्नोर नहीं कर सकते. तो हम केवल अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो आपके अकाउंट्स जो पास्ट इवेंट्स पे बेस्ड हैं, दैट मे नॉट बी वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द actual position that will happen in the future. So these are certain limitations. Now we will talk about qualitative characteristic of accounting information. कि अगर कोई accounting information है तो उसकी क्या qualities होनी चाहिए. हम ये नहीं कह रहे हम qualitative information record करेंगे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो information हमने record करी वो किस quality की होनी चाहिए. तो the 4 features which must be present in every accounting information are, the very first is दैट इट शुड बी रिलायबल. रिलायबल मतलब भरोसे लायक होना चाहिए. ऐसे अकाउंट्स बने होने चाहिए जिसपे इंसान ट्रस्ट कर सके, हाँ कि ये सही अकाउंट्स हैं, इसमें घपला नहीं होगा, इसमें मटेरियल एरर्स नहीं होंगे, इसमें फ्रॉड्स नहीं होंगे. तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है इट शुड बी रिलायबल. दैट इज इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स एंड बायस. इट मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल. ठीक है ना, फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, वेरीफाई करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. वेरीफाई कर सकें मतलब चेक कर सकें कि this transaction actually take place. And how we will find it? The transaction should be backed with proper evidence to support the transaction. There should be sufficient documents which can prove that this transaction actually took place. चाहे आपके वो कैश मेमो हो, चाहे वो आपके बिल्स हो, चाहे चेक हो, कुछ भी, but there should be evidences to support that transaction. Another is relevance. Relevance means all the relevant information. Relevant information means which can influence someone decision. वो सारी इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए आपके अकाउंट्स में. वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी यूज़र का डिसीजन चेंज कर सकती है. आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपके ऊपर क्या कहते हैं किसी ने कोई क्लेम किया हुआ है, ठीक है, कुछ भी, अगर जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे शो होनी चाहिए. द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट होनी चाहिए कि वो समझ में आ सके. द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन सच अ मैनर एज टू बी रेडली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर विद रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जिस पर्सन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉमर्स की एंड अकाउंट्स की, उसको समझ में आए कि अकाउंट्स में क्या शो हो रहा है, हाउ मच प्रॉफिट इज देयर, हाउ मच लॉस इज देयर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. तो अकाउंट शुड बी प्रेजेंटेड इन एन ईजी मैनर, इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर. And the last feature is comparability. That means accounts of two business or that of two different year of the same business, they should have this feature of comparability. आप उनको compare कर सको कि अच्छा पहले हम इस हालत में थे, now we have come to this condition. The accounting information should be prepared in such a way that profitability and financial position of the concern may be compared with the other concern of similar type. इट मस्ट फैसिलिटेट बोथ इंट्राफॉर्म. इंट्राफॉर्म मतलब अपना ही कंपैरिजन किसी और पीरियड से, लाइक लास्ट ईयर और इस ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना. एंड इंटरफॉर्म, इंटरफॉर्म कंपैरिजन मींस कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विद डिफरेंट फॉर्म्स. तो इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म दोनों हमें कंपैरिजन जो है, ये दोनों हमारे जो क्या कहते हैं चेक करना या कंपेयर करना है वो फैसिलिटेट करे आपके अकाउंट्स. इसके लिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी यूज द सेम पॉलिसीज अगेन एंड अगेन so that it can be easily arranged. So this is it for it today. Till then, take care and have a great day.